Very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed lots of the theoretical as well as the practical concept related to the issue of share, forfeiture of the share, reissue of the share. Now, in this today's topic, in today's video and today's session, let's discuss the new topic of the first chapter of the volume 2, that is an oversubscription and forfeiture of the share. And this topic is very important for the examination point of view. So please listen all the important information and all the important practical portions which will be discussed in this video very carefully. So, in the first chapter of the volume 2 and the 7th chapter of the class 12 accountancy syllabus, and it is a almost second last topic of this chapter, that is an oversubscription and forfeiture of shares. You know very well what is the meaning of oversubscription. Oversubscription is a situation where public applied more than the issued share. And you know very well, in case of the oversubscription, company cannot be allowed more than the issued share. यानी कंपनी मैक्सिमम उतने ही शेयर अलॉट कर सकती है जितना उसने इशू किया. So that's why it is a very biggest problem in front of the company is that how it will be adjust the applied share with the allotted share. And there are basically three cases related to the oversubscription, that is in full allotment, pro rata allotment and nil allotment. In case of the full allotment, there is no need to adjust the amount of excess allotment money with the allotment and the calls. And in case of the nil allotment, you know very well, excess application money will be refunded to the shareholder. But when we are talking about the pro rata allotment, in case of the oversubscription, the excess application money will be adjusted with the allotment and first call. So in this situation, if any shareholder fails to pay the allotment of first call money, the computation of calls in arrear amount on the allotment and the first call or any other call will be different from the previous questions. पहले के क्वेश्चंस में हम लोग कॉल्स इन एरिया डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते थे कि कितने शेयर्स हैं, अलॉटमेंट की मनी कितनी है उससे मल्टीप्लाई कर देते थे, या फिर जितने शेयर्स हैं उसको फर्स्ट कॉल की मनी से मल्टीप्लाई करके वी हैव टू फाइंड आउट दी कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स इन एरियर ऑन कॉल्स. बट इन केस ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर एक्सेस पैसा अलॉटमेंट पे या कॉल्स पे एडजस्ट है तो हमें कॉल्स इन एरियर फाइंड आउट करते वक्त ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना पैसा उसका अलॉटमेंट या कॉल्स पे एडजस्ट. सो कॉल्स इन एरियर फाइंड आउट करना अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल में ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन में थोड़ा सा अलग हो जाता है. एंड यू नो वेरी वेल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरफीचर ऑफ द शेयर, सो फॉरफीचर ऑफ द शेयर इज अ रिजल्ट ऑफ द कॉल्स इन एरियर. जब कोई शेयर होल्डर प्रॉपर टाइम पे अलॉटमेंट या कॉल्स का पैसा नहीं देता तो सिचुएशन में कंपनी उसके शेयर को क्या कर लेती है, फॉरफीट कर लेती है. एंड फॉरफीट करने के बाद वो क्या करते हैं, लोग एंट्री पास करते हैं. एंट्री में यू नो वेरी वेल हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कितना एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का कितना नहीं मिला फर्स्ट कॉल. सो यू कैन सी दैट फॉरफीचर में एरियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उसी के बेसिस पे वी हैव टू फाइंड आउट द शेयर फॉरफीचर अमाउंट. सो इन सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को, इन सारे बेसिक्स पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए लेट्स वी सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम
related to this topic. So today is 10th July. So on today's video, let's discuss the practical problem related to the oversubscription and forfeiture of share. यानी इस क्वेश्चन में क्या होगा? इस क्वेश्चन में ये होगा कि ओवरसब्सक्रिप्शन भी होगा, एरियर भी होगा, उसके बाद आप शेयर को फॉरफीट भी करेंगे, फिर रीइश्यू भी करेंगे, फिर कैपिटल रिजर्व के अमाउंट भी फाइंड आउट करेंगे. सो विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स वी स्टार्ट द टुडेस टॉपिक. ओके, so the first question related to this topic, that is an oversubscription and forfeiture of share, is question number 52. According to the question number 52, you can see that X Limited offered 25,000 shares of rupees 100 each. 25,000 shares of rupees 100 each, payable on application of rupees 25, on allotment rupees 20, on first call rupees 30, and final call पे क्या कह रहा है? बैलेंस कितना है? 350, 75, 20. So application 25, allotment 20, first call 30, and final call 25. Application were received for 40,000 share, out of which share were allotted to the applicants for 35,000 shares on pro rata basis. यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि सारे शेयर होल्डर्स ने पैसा दे दिया, एप्लीकेशन आया 40,000 पे और हमने उनको सिर्फ कितने शेयर अलॉट किए? 35,000 शेयर्स को पैसा अलॉट किया, बाकी को रिजेक्ट कर दिया. यही बोल रहा है क्वेश्चन, इसमें बहुत इजी है. तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, अप्लाइड और अलॉटेड वाला. याद होगा आप लोगों को, हम लोग बनाते थे कि कितना अप्लाइड है और कितना अलॉटेड है. अप्लाइड एंड अलॉटेड. अगर हम टोटल देखें तो कंपनी कितना अलॉट कर सकती है? 25,000. और अप्लाइड कितने के लिए आया है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अप्लाइड हुआ है 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है, 40,000 शेयर्स. और कंपनी ने कैसे अलॉट किया है? 35,000 शेयर होल्डर्स को कंपनी ने कितना शेयर दे दिया है? पूरा 25 प्रो राटा के लिए. बाकी जो बचे 5,000, इनको कुछ भी अलॉट नहीं किया गया है. सो हम लोग यहाँ निकालेंगे एक्सेस शेयर, मतलब शेयर पे कितना एक्सेस है. सो अप्लाइड हुआ 35, अलॉट हुआ 25, तो एक्सेस कितना बचा? 10,000. और यहाँ पे एक्सेस कितना बचा? 5,000. अब अमाउंट देखें, एप्लीकेशन पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी होगी प्रो राटा केस में? 10,000 इंटू 25, 25, 1, 2, 3, 4, 2,50,000. और नील अलॉटमेंट केस में एक्सेस पैसा कितना होगा? 125. सो 2,50,000 जो रुपीज है वो हो जाएगा अलॉटमेंट पे एडजस्ट, और 1,25,000 क्या होगा? हम रिटर्न कर देंगे. और समझ आया? तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आया? 40,000. एप्लीकेशन मनी कितने सी थी? 25. सो टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी होगी? दैट इज एन 10 लाख. उसके बाद एप्लीकेशन को आप ट्रांसफर करोगे कहां पर? शेयर कैपिटल में. लेकिन शेयर कैपिटल में आप क्या ट्रांसफर करते हो? एक्चुअल एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करते हो, पूरी एप्लीकेशन मनी नहीं, एक्चुअल. एक्चुअल कितनी है आपकी? यस, एक्चुअल निकालना पड़ेगा. एक्चुअल शेयर्स कितने हैं? 25 इंटू 25. ओके. और रिटर्न कितना करना है? टोटल एप्लीकेशन मनी मिला 10 लाख, जिसमें से अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करना है? 2,50,000. और रिटर्न कितना करना है?
1,25,000। सो 3,75,000 तो आपको वैसे भी क्या कर देना है, प्रोराटा की तरह नील में रिटर्न कर देना। नील वाला 1,25,000 रिटर्न कर दिया, अलॉटमेंट वाला 2,50,000 और जो 6,25,000 वो एक्चुअल एप्लीकेशन मनी जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। जब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना ड्यू करेंगे, 25,000 से 20 रुपीज यानी कि 5 लाख रुपीज। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग आप लोग खोल लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो लाइन क्वेश्चन में लिखी है वो थोड़ा सा आपको फंसाएगी क्वेश्चंस में। तो ये है, ऑल द शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग मिस्टर गोपाल हु वाज अलॉटेड 500 शेयर। यानी सारे शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया मिस्टर गोपाल को छोड़ के, यानी 500 शेयर उनके पास था, उन्होंने नहीं दिया। आप देख रहे हो कि अलॉटमेंट में 2,50,000 का ऑलरेडी एडजस्ट है, यानी जब आप अलॉटमेंट रिसीव करने जाओगे तो पहले से आपको कितना मिल चुका है, 2,50,000। इस 2,50,000 में गोपाल भी तो होंगे, क्योंकि सबको प्रोराटा किया गया। गोपाल का जो कैटेगरी अगर आप देखो तो 35,000 है, तो उनको कितना मिला है, 25,000। तो इसी में कहीं ना कहीं गोपाल भी होंगे। गोपाल किस कैटेगरी में है, इस वाले में किस वाले में, भाई नील होते तो वो शेयर होल्डर होते ही नहीं, लेकिन उनको कुछ शेयर मिला है, यानी कितना शेयर उनको अलॉट किया गया है, 500। यानी हम अलॉटेड शेयर्स के बेसिस से अप्लाइड शेयर निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है, वर्किंग नोट क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट एरियर की अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कॉस्ट एरियर की अमाउंट कैसे निकलेगी वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। अलॉटमेंट पे जब हम कॉस्ट एरियर की अमाउंट निकालेंगे तो सबसे पहले आपने देखा क्या नाम है, गोपाल। गोपाल जिनके पास 500 शेयर अलॉटेड है, उन्होंने एरियर किया है एरियर ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट को उन्होंने क्या किया है, एरियर। गोपाल who was allotted 500 share paid the allotment money एक्सेप्टिंग मिस्टर गोपाल, मतलब मिस्टर गोपाल ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं। तो हमें निकालना पड़ेगा कि कितना पैसा उनका अलॉटमेंट पे एडजस्ट है, ताकि बैलेंस अमाउंट हम लोग क्या मान के चले, उनका एरियर मान के चले। तो यहाँ जब हम एंट्री करते हैं फोर्थ वाली, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट के सामने कितना लिखेंगे, 5 लाख मांगा है, जिसमें से पहले से कितना मिल चुका है, 2.5 लाख, तो मिलेगा कितना, सिर्फ 2.5 लाख मिलेगा। अब उसमें से हमें एरियर निकालना है, बैंक कितना मिलेगा वो निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहानी ये है कि गोपाल का 500 शेयर अलॉटेड है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा अप्लाइड शेयर निकालना। क्या निकालना, अप्लाइड शेयर्स ऑफ गोपाल। गोपाल का हम निकालेंगे अप्लाइड शेयर। ये अप्लाइड शेयर कैसे निकलता है ये मैं बता दूं। आपको क्या निकालना है, अप्लाइड। गिवन क्या है, अलॉटेड। अलॉटेड गिवन है 500, उस 500 के बेसिस पे आपको निकालना है कि उसने कितना अप्लाई किया होगा, क्योंकि जितना उसने अप्लाई किया होगा उतना ही उसने एप्लीकेशन मनी भरा होगा, और जितना उसको एक्चुअल मिला होगा वो उसका एक्चुअल एप्लीकेशन मनी होगा। कहानी समझिएगा, धीरे धीरे कहानी समझ में आएगा। तो गोपाल ने कितना अप्लाई किया, कैसे निकालेंगे, अगर अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड को ऊपर रखना है और जो गिवन है उसको नीचे, और मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि 35, अगर 25,000 अलॉटेड है, अगर आप याद करो यूनिटरी मेथड लगाते थे, एक आम का 5 आम का दाम 50 रुपए है, तो एक आम का दाम क्या होता था, डिवाइड करते थे, फिर 3 आम का दाम निकालते थे, ऐसे करते थे। वैसे ही यहाँ पे भी आपको एक मेथड फॉलो करना है यूनिटरी वाला, कि अगर टोटलिटी में आप देखें, अगर आपने 25,000 शेयर अलॉट हुआ, अगर आपने अप्लाइड कितना किया, 35, अप्लाइड निकालना है, तो अगर एक अलॉट होता तो अप्लाइड कितना करना पड़ता, भाई जाहिर सी बात है 35,000 शेयर मांगने पे तो मिला 25,000 शेयर, तो उस बंदे ने भी, गोपाल ने को 500 शेयर मिला है, तो उसने खाली 500 शेयर मांगा होगा, नहीं,
वो कोई स्पेशल थोड़ी ना है, उसने कितना मांगा होगा, उसने भी उससे ज़्यादा पैसा मांगा होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, सो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे कि गोपाल ने अप्लाई कितना किया था। भाई जब टोटलिटी में देख रहे हैं हम कि मांगा जा रहा है 35,000 तो मिल रहा है 25,000, तो अगर हम इंडिविजुअली देखें तो गोपाल को मिला है कितना, अलॉट हुआ है 500, तो उसने अप्लाइड तो ज़्यादा किया होगा, 35,000 डिवाइडेड 25,000 इंटू 100। ये आप कैसे निकालोगे, वही यूनिटरी मेथड से जैसे बचपन में निकालते थे वैसे। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया आपका 700, मतलब कि गोपाल ने 700 शेयर अप्लाई किया था, तब जाकर उसे 500 शेयर मिला था। अलॉट मतलब मिलना, अप्लाई मतलब कितना मांगा था। तो अब हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं, तब इसके हिसाब से एप्लीकेशन मनी पेड बाय गोपाल कितना होगा, गोपाल ने कितना एप्लीकेशन मनी दिया होगा, 700 पे कि 500 पे। जाहिर सी बात है, ओवर सब्सक्रिप्शन का सिचुएशन है, तो गोपाल ने 500 शेयर पे एप्लीकेशन नहीं दिया होगा, 700 पे। 700 into 25 को एप्लीकेशन 17,500, लेकिन उसका एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितना बनता है, स्टेप समझिएगा ध्यान से। सर उसको एक्चुअल तो 50 शेयर ही 500 शेयर ही मिला था, 500 शेयर के हिसाब से 12,500, यानी जो एक्सेस मनी है खाली किसका, गोपाल का। एक्सेस मनी किसका, सिर्फ गोपाल का। एक्सेस मनी जो किस पर एडजस्ट है, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हुआ होगा, डिफरेंस निकालो 5,000, यानी अलॉटमेंट तो उसका ऑलरेडी कितना एडजस्ट है 5,000, तो हम उससे अलॉटमेंट कितना ड्यू करेंगे, स्टेप समझिए। अलॉटमेंट कितना ड्यू करेंगे, 500 इंटू 20, अलॉटमेंट 20 से 10,000, यानी एरियर कितना बन रहेगा, तो इसने एरियर पूरा 10,000 नहीं दिया। अब स्टेप को समझिए, हमें क्या निकालना था कि गोपाल ने कितना एरियर के अलॉटमेंट थे, और दूसरा सवाल ये भी उठता है कि एरियर ऑलरेडी है अलॉटमेंट पे, गोपाल ने एरियर किया अलॉटमेंट पे, पॉइंट नंबर 1, और अलॉटमेंट पे ही हमने एक्सेस पैसा एडजस्ट करके रखा हुआ है, कितना 2,50,000, तो ये 2,50,000 सारे शेयर होल्डर्स का है, इसमें से कुछ पैसा जब होगा वो किसका होगा, गोपाल का भी होगा, क्योंकि गोपाल ने भी ज़्यादा शेयर मांगा था, तब जाकर उसे कम शेयर मिला था। तो सारे शेयर होल्डर की कहानी यही है कि मांग रहे हैं 35,000 तो जाके मिल रहा है 25,000, ये टोटलिटी की बात है। उसी में से गोपाल भी है जिसे मिला था 500, तो उसने मांगा कितना होगा, उस रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे कि अगर गोपाल का अगर टोटलिटी में अप्लाइड 35,000 है तो अलॉटेड 25,000 है, तो गोपाल का अगर 500 अलॉटेड होता तो उसने अप्लाई कितना किया है, अप्लाई उसने किया है 725, दैट इज 17,500 माइनस एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितना बन रहा है 525, 12,500 एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, यानी अगर आपने एप्लीकेशन मनी दिया हमें 17,500, हमने आपको शेयर दिया 12,500 का, तो जो 5,000 एक्स्ट्रा बचा है टोटलिटी में कितना एडजस्ट हुआ है 2,50,000 विथ अलॉटमेंट। लेकिन सिर्फ गोपाल की बात करें, उसमें सिर्फ गोपाल की बात करें तो गोपाल का कितना पैसा एडजस्ट है अलॉटमेंट में 5,000, तो हम जब अलॉटमेंट उससे मांगेंगे तो कितना मांगेंगे 10,000, तो वो 5,000 पहले से दे चुका है, तो सिर्फ कितना देना उसका बाकी 5,000। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि गोपाल ने नहीं दिया, तो हम एरियर कितना मांगेंगे 10,000, 5,000 ना, कितना मांगे 10,000 में, तो 5,000 पहले से दे चुका है, तो सिर्फ उसका कितना एरियर मांगेंगे 5,000। निकल के आ गया कॉस्ट एरियर ऑन अलॉटमेंट, ये 5,000 आ गए, यानी 2,50,000 में से 5,000 एरियर हो गया, 2,45,000। यही हमें फाइंड आउट करना था अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, बिकॉज दिस इज द सिचुएशन वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दी, यस वी आर टॉकिंग अबाउट दी ओवर सब्सक्रिप्शन। अब फर्स्ट को अलॉटमेंट हो गया, यहाँ एरियर कर दिया, उसके बाद क्या लिखा है क्वेश्चन में, दीज शेयर वेर फॉरफिटेड इमीडिएटली, कंपनी को गुस्सा आया उसने तुरंत शेयर फॉरफिट कर दिया, यानी कि गोपाल का जो 500 शेयर था कंपनी ने तुरंत उसको फॉरफिट करने का डिसीजन ले लिया।
ठीक है, चलिए एंट्री नंबर 5 करते हैं। एंट्री नंबर 5 मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, फॉरफीट कर। फॉरफीट की एंट्री क्या होता है? शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू पॉलिसी डेबिट। क्योंकि क्वेश्चन में आपने देखा है कि यहाँ पर हमने सिर्फ एप्लीकेशन मांगा है, अलॉटमेंट मांगा है। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ड्यू करने से पहले ही कंपनी ने गोपाल के शेयर को फॉरफीट कर दिया, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जब हम एंट्री पास करते हैं फॉरफीचर की तो ये देखते हैं शेयर पार पे कि प्रीमियम पे, तो क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है क्या है, पार पे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अब तीसरी बात है, एंट्री हमने पास कर ली, सिचुएशन समझ लिया। अब हम एंट्री क्या पास करेंगे? 500 शेयर को फॉरफीट करेंगे। तो 500 शेयर को फॉरफीट कर समय शेयर कैपिटल के सामने क्या लिखेंगे कि 500 शेयर पे कितना पैसा मिल चुका, कितना हमने मांगा था। 500 शेयर पे हमने सिर्फ क्या मांगा? एप्लीकेशन अलॉटमेंट 45 22,500 से मांगा। कितना उससे मिला है ये हमको नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है कि उससे कितना नहीं मिला है, 5,000 का एरियर। और कितना दे दिया अभी तक? उसने सिर्फ 17,500 दिया था और 5,000 एरियर क्या था? आगे सबसे पहली अमाउंट फॉरफीचर में, सबसे आखिरी अमाउंट एरियर। आप एरियर अकाउंट ओपन करेंगे तो लिखेंगे टू कॉल्स इन एरियर, और अगर एरियर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तो वहाँ क्या लिखेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट। वॉट इट? लेकिन आपने एरियर अकाउंट यहाँ ओपन किया हो, देख रहे हैं, इसलिए मैंने उसको एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर क्या किया? क्लोज किया। तो हमने फॉरफीट भी कर लिया। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में? द फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर। उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगा गया, यानी क्वेश्चन में फाइनल कॉल के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है, यानी हमने फाइनल कॉल मांगना ही नहीं है। क्या करना है? फाइनल कॉल मांगना ही नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलिए फाइनल फर्स्ट कॉल हम लोग मेड करते हैं। अब जब हम लोग फर्स्ट कॉल मांगेंगे, यानी एंट्री नंबर कौन कौन सी करेंगे? एंट्री नंबर 6 और 7। एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर से करेंगे? टोटल शेयर इशू कितना था? 25,000। उसमें से कंपनी ने 500 शेयर को क्या कर लिया? वापस ले लिया। कितने शेयर को वापस कर लिया? 500। तो कंपनी के पास कितने शेयर बचे? 24,500। उसमें से फर्स्ट कॉल की वैल्यू कितना है? 0,0,0 7,35,000। ये है शेयर फर्स्ट कॉल की अमाउंट ड्यू हो गई। अब फर्स्ट कॉल के बाद फर्स्ट कॉल पे तो कोई एरियर बोल ही नहीं रहा है क्वेश्चन में, अच्छी बात है, फटाफट कंप्लीट करते हैं। एंट्री नंबर 7 रिसीव करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल। 7,35,000। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हमने एप्लीकेशन रिसीव किया, एप्लीकेशन को ट्रांसफर किया अलॉट कैपिटल में, अलॉटमेंट एक्सेस मनी बैंक रिटर्न कर दिया, अलॉटमेंट ड्यू किया, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ द वर्किंग नोट, फिर गोपाल के शेयर को फॉरफीट किया, फिर फर्स्ट कॉल मांगा, फर्स्ट कॉल रिसीव हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइनल कॉल नहीं मांगना है, ये नहीं लिखा है, आगे लिखा है द फॉरफीटेड शेयर वर इशूड एट 78 पर शेयर ₹75 पेड, यानी कि द फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड। तो फाइनल कॉल नहीं मांगना है, कह रहा है कि जो हमने फॉरफीट किया था शेयर 500, उसको हम फिर से इशू करेंगे 78 रुपीज़ पे। अब पेड अप कितना लगाएंगे? 75, यानी कि 75 उसकी फेस वैल्यू होगी और इशू करेंगे 78 पे, यानी कि प्रीमियम का केस हो गया। यानी पेड अप आपके आगे जो, अगर फुल्ली पेड अप होता तो 100 रुपये का शेयर मानेंगे, पेड अप के आगे जो वैल्यू लिखी है वो उसकी फेस वैल्यू मानेंगे, और जितना इशू किया है उसके लिए वैल्यू तो दिया हुआ है 78। तो जब इशू कर रहे हैं तो कितना शेयर इशू कर रहे हैं? पूरा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना शेयर इशू करें? 500 इंटू 75 का शेयर है, 78 पे इशू कर रहे हैं तो 500 इंटू 3, 1500 रुपये प्रीमियम का हो गया, 37,500 हो गया शेयर कैपिटल का, 39,000 हो गया रिसीव अमाउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर। इसलिए सीरियल नंबर ध्यान से देख के कॉपी करिएगा, सीरियल नंबर जहां इधर उधर होगा आपको दिक्कत होगी। अब हम लोग चलते हैं लास्ट एंट्री, एंट्री नंबर व्हाट 9। एंट्री नंबर 9 क्या होगा? बैलेंस अमाउंट
will be transferred to the capital reserve. फॉरफीट हुआ, फर्स्ट कॉल मांगा, फर्स्ट कॉल रिसीव किया, फिर हमने शेयर को इशू किया। तो आपको बताया ना, जब हम शेयर को इशू करते हैं फॉरफीट वाले को, तो जो शेयर फॉरफीचर में यानी ये जो बचा हुआ 17,500 रुपये, उसको हम क्या करते हैं, कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि इशू के टाइम एक भी पैसा एडजस्ट नहीं हुआ है। देखिए आंसर भी आया, कैपिटल रिजर्व 17,500। सो लास्ट एंट्री विल बी एंट्री नंबर 9। एंट्री नंबर 9 विल बी अ शेयर forfeiture account debit to capital reserve। कितना forfeiture का पैसा था, 17,500, जिसमें से एक इशू नहीं हो, एडजस्ट नहीं हुआ, क्योंकि इशू किस पे था, प्रीमियम पे। ये हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 52 विथ वर्किंग नोट्स विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। एंड थोड़ा सा रीशू की एंट्रीज दिख नहीं रही होगी, अब शायद आपको क्लियरली दिखेगी रीशू की एंट्री भी। बैंक अकाउंट डेबिट 39,000, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 75 का शेयर पेडर माना गया है, उसको 78 पे रीशू किया गया है। नोट डाउन इट प्रॉपरली। सो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, और स्पेशली प्रोराटा के सिचुएशन में जब हम पैसे को अलॉटमेंट और कॉस्ट पे एडजस्ट करते हैं, और अलॉटमेंट और कॉस्ट पे अगर पैसा एडजस्ट वहीं पे एरियर हो जाता है, तो एरियर निकालने के लिए हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो। वो सीक्वेंस क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले अगर क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर गिवन है, अगर क्वेश्चन में क्या गिवन है, अलॉटेड शेयर गिवन, स्टेप 1 आप समझ लीजिए। स्टेप 1 है कि अगर अलॉटेड शेयर गिवन है तो आप क्या करेंगे, अप्लाइड शेयर, ठीक है, फाइंड आउट करें। और अगर अप्लाइड शेयर गिवन है तो आप अलॉटेड शेयर क्या करेंगे, फाइंड आउट। और विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको यहाँ शॉर्ट तरीका बताया था, रफ रिमूव हो गई है, कि टोटल अगर आपको अलॉटेड शेयर निकालना है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अलॉटेड शेयर दिखाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल अलॉटेड शेयर डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड शेयर इनटू जिसका भी अप्लाइड, जिसका भी अलॉटेड है। जैसे ये टोटलिटी में बात हो रही है और ये इंडिविजुअलिज्म की बात हो रही है कि एक शेयर होल्डर का अप्लाइड कितना है। जैसे गोपाल का 500 शेयर क्या था, 500 शेयर अलॉटेड था, तो हम लोगों ने क्या निकाला, अप्लाइड। कैसे निकाला अप्लाइड शेयर, हम लोगों ने टोटल अप्लाइड शेयर को ऊपर रखा और टोटल अलॉटेड शेयर को नीचे रखा डिनोमिनेटर में, और अलॉटेड शेयर ऑफ गोपाल ऑफ पर्टिकुलर शेयर होल्डर, जिस भी शेयर होल्डर की बात हो रही है उस शेयर होल्डर के अलॉटेड शेयर को हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया अप्लाइड एंड अलॉटेड, जैसे भी आएगा। फिर उसके बाद ये फॉर्मेट आपको याद रखना है कि अगर आपको अलॉटमेंट एरिया निकालना है तो सबसे पहले आप निकालोगे कि कितना अमाउंट उसने पे किया, एप्लीकेशन मनी कितना पे किया, फिर उसमें से कितना एक्चुअल एप्लीकेशन मनी बन रही है, एक्सेस मनी कितनी आ रही है जो अलॉटमेंट पर एडजस्ट है, फिर आप अलॉटमेंट कितने से मांगोगे, तो जो एक्सेस मनी एडजस्ट है और अलॉटमेंट मनी जो ड्यू है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही आपका निकल के आ जाएगा पॉजिटिव एरियर और अलॉटमेंट। तो इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 50 को आज हमने डिस्कस किया, इसके अलावा 53 है, 54 है, वो क्वेश्चंस आप घर में डिस्कस करिए, सॉल्व करिए। एंड यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ आस्क मी, एंड आई होप टुडे वी सॉल्व एंड डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टॉपिक। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। एंड हेयर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू कि जुलाई के लास्ट वीक से आपके यूनिट टेस्ट 1 स्टार्ट हो रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, प्लीज़ सी ऑल द वीडियोज़ वेरी केयरफुली। और आपको कोई भी डाउट है, 1% भी डाउट है, सो प्लीज़ आस्क मी। अदरवाइज जब एग्जामिनेशन आएंगे सो आप प्रेशराइज हो सकते हैं, आप टेंशन लेंगे, तो उस टेंशन को अभी से ख़त्म करना स्टार्ट करें, ठीक है।
सो आई होप कि आप सभी लोग मैक्सिमम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कोई डाउट होगा तो पूछेंगे. ओके, सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट.